ये लगा दी है स्लॉट चार्जिंग दी जानी थी यहाँ पे स्लॉट के लिए। चलें ठीक है खत्म होने लगी तब ठीक देखिए। है रिकॉर्डिंग ऑन है। यस यस यार ये मैटलैब शो नहीं कर रहा है इसमें। वो इधर शो नहीं हो रहा, शो नहीं हो रहा। क्या चक्कर है? एडिटिंग वगैरह तो नहीं करनी है। ठीक तो है ये किधर है दोबारा करना है, दोबारा करने के बाद Okay, so मैंने इस फंक्शन को रीनेम किया है क्योंकि उन्होंने एक वो लाइब्रेरी के अंदर ये फंक्शन बना दिया था, वो बार बार वही हो रहा था। आई एम जस्ट रीनेमिंग द फंक्शन एज 3dim। सो दिस इज समथिंग। साथ में स्लाइड्स भी ओपन कर लेता हूँ जस्ट के we can inline with what we are doing in the class these days. Okay, so given x1 and given x2, I can compute a1 and a2. In MATLAB, I can do this in the following way. So a2 is P inverse
P2 steric. So this is X1H, this is X2H. Make sense? Yes, no? Okay. Now I can compute the camera, the center of the camera matrix 1 using null space of P1. Yes? That will give me the center 1. Similarly, I can compute the center 2 as the null space of P2. All these results are in homogeneous way, so I can convert a homogeneous point to non-homogeneous point by dividing the last content. So I can write another function, for example, edit f dehomogenize, dehom, that means dehomogenize a point. So function x is equal to df dehom x homogeneous, that is the following: x is equal to xh dot slash xh end. Okay, and x is equal to x 1 till end minus 1. Oh, so you pick the last coordinate xh end and you divide all the coordinates with this. Dot slash means do it point by point. Okay, and then you discard the last point. Then you discard the last coordinate. Make sense? Yes, no? We will always call this function, for example, for dehomogenizing. Rather than writing this code again and again, let's call this function. Okay, so is it okay to pass this in? So let me write. So A1 is equal to f dehom A1. Make sense? Similarly, कौन सी? ये अगर आप स्लाइड्स में देखें, so this A1 is pseudo inverse of P times X1. So PIMV is a BATLAB function to take the pseudo inverse of any matrix. अगर inverse exist ना कर रहा हो, you can take the pseudo inverse and that gives you the solution of the linear system. Make sense? So given X1, you can make A1, similarly A2. And then you compute the null space of this matrix 1 to compute the center 1, then you compute null space of 2, and then you compute the center 2. All these points are in homogeneous form, just dehomogenize them. Make sense? P1 के सेंटर रिटर्न कर देगा, कैमरा सेंटर. Yes. और P2 का भी कैमरा Yes. सेंटर. Yes. ओके, अब हमारे पास पॉइंट है C1 A1. इससे हम एक लाइन कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं 3D की. वो लाइन ये है, दिस इज, ये यहां पे कर्सर है. एंड यूजिंग C2 एंड A2 वी कैन कंस्ट्रक्ट अनदर लाइन. ये दोनों लाइंस जहां पे इंटरसेक्ट करेंगी, दैट्स द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. मेक सेंस? ओके, मैंने इंटरनेट से अभी एक फंक्शन डाउनलोड किया है, कॉपी किया है, जो कि दो 3D लाइंस का इंटरसेक्शन रिटर्न करता है. ये मैंने यहां पे कॉपी कर दिया है, ये मैंने टीचर डेटा पे भी रख दिया है. इसमें अगर आप दो लाइंस को इस तरह से पास करेंगे, एक लाइन का स्टार्टिंग पॉइंट और दूसरी लाइन का स्टार्टिंग पॉइंट, दिस इज मैट्रिक्स PA. फिर जो दूसरी लाइन है, पहली लाइन का एंडिंग पॉइंट और दूसरी लाइन का एंडिंग पॉइंट,
उसको अगर आप PB में पास कर दें तो ये फंक्शन इन दोनों यानी इन दोनों लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बता देगा। मेक सेंस? इस फंक्शन की कोडिंग क्या है? वी आर नॉट गोइंग इनटू दैट, वी आर यूजिंग दैट फंक्शन एज अ ब्लैक बॉक्स। गिवन टू लाइंस, आई मीन 2 points on one line and 2 points on another line. These are 2 lines in 3D. This function will give you the point of intersection. I will call that function. I will call this function. Okay? So let's see. Okay, so PA is simply C1, ये रो फॉर्म में लेता है, so C1 ट्रांसपोज C2 ट्रांसपोज। ऑलरेडी जो हमारे पास C1 है वो कॉलम फॉर्म में है, ऑलरेडी जो C2 है वो कॉलम फॉर्म में है। ये फंक्शन की इंप्लीमेंटेशन ये है कि ये रो फॉर्म में पॉइंट्स ले रहा है, सो हम इनके ट्रांसपोज दे देते हैं। दिस इज PA, स्टार्टिंग पॉइंट्स ऑफ बोथ द लाइंस। नाउ वी विल गिव एंडिंग पॉइंट्स ऑफ बोथ द लाइंस। PB, ending points or another point on the line. That's it. Ending doesn't mean the line does not go beyond that. Some other point. So PB is simply A1 transpose A2 transpose. Make sense? Now the point of intersection, which is this X, is simply X is equal to this function. Call this function. जी ओके, सो अगर आपने दो लाइंस का इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है तो दोनों लाइंस को किसी सूरत में किसी फंक्शन में पास करना पड़ेगा। तो लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए आप 2 पॉइंट्स यूज कर लें। एक पॉइंट है C1, दूसरा पॉइंट है A1। दैट्स वन लाइन। अनदर लाइन इज C2 A2। यस? आप ये प्रोजेक्शन प्लेन पे ले रहे हैं? नहीं, ये 3D पॉइंट्स हैं। C1 is a point in 3D, A1 is a point in 3D. Make sense? Yes. Our starting point is not from any frame, it is from center of camera. Starting point. देखें, this is not the starting point, this is one point on the line. The other point is another point on the line. Given 2 points on the line, I can define the equation of the line. जो अगर इस फंक्शन की इंप्लीमेंटेशन देखें ना, उसमें उसने वर्ड यूज किया हुआ स्टार्टिंग पॉइंट। ये असल में स्टार्टिंग पॉइंट नहीं, इट इज वन पॉइंट ऑन द लाइन। दूसरा वो उसने पॉइंट यूज किया हुआ कह रहा है एंडिंग पॉइंट। दिस नॉट एंडिंग पॉइंट, दिस अनदर पॉइंट ऑन द लाइन। C is one point on the line. If you see the slides, C is this point, okay? So camera center, sorry, C is this point. Another point A might be this one. So the line joining these 2 points is this line. Similarly, C2 A2, this is the line. Given the 2 lines, where they intersect, ये जो पर्टिकुलर फंक्शन है ये आर्गुमेंट्स रिसीव कैसे करता है? गिव मी 2 पॉइंट्स ऑन लाइन, गिव मी 1 पॉइंट ऑन लाइन 1, another point on line 1. Give me 1 point on line 2, another point on line 2. This is how the arguments are passed in this particular function. You may write another function and set a different conventions of arguments. Make sense? Yes, no? Okay. So that's it. This is X and we will return this X. So far so good. अब हम इस फंक्शन को कॉल करते हैं। अगर ये फंक्शन की इंप्लीमेंटेशन क्लियर है, जो स्लाइड थी हमने एग्जैक्टली वो यूज कर दी हुई है। अब हम इसको टेस्ट करते हैं हाउ गुड दिस फंक्शन इज। इंटरसेक्शन पॉइंट अभी दोनों कैमरा की वो हमारा 2 lines they will intersect at a point, that point is yes, that is the 3D point. ये फंक्शन की इंप्लीमेंटेशन क्लियर है तो मैं इसको कॉल करने जा रहा हूं। इज दैट ओके विद एवरीवन? ओके, ग्रेट। सो आई एम गोइंग टू राइट अ कॉलर जो इस फंक्शन को कॉल करेगा। लेट्स से एडिट, एक स्क्रिप्ट फाइल लिख लेता हूं, टेस्ट 3D rec. Okay, so I build a matrix P1 rand 3/4. I build a matrix 2 random matrix 3/4. Let's say P1 is the first camera matrix and P2 is the second camera matrix. Obviously these camera matrices will be estimated in some way through DLT, or I'm assuming these two camera matrices. Okay, let's say X is a point in 3D
and this point is rand 3/1, and its homogeneous version is xh is x1. This is some random point. I do not know what that point is. Make sense? But what I really know is x1 homogeneous. Okay, x1 homogeneous. That is p1 steric x. Similarly, x2 homogeneous is p2 steric x. Okay, and so x1 is f d होम, क्योंकि हमने फंक्शन में नॉन होमोजेनाइज दिए हुए हैं ना, फंक्शन में जो हमने रिसीव किए हुए नॉन होमोजेनाइज हैं, इसलिए इसको नॉन होमोजेनाइज कर लें. x1h similarly x2 is f d home x2h. Now we are good to call, now we are okay to call our function. अगर हमारे फंक्शन में 3D पॉइंट वही दिया जो हमारे पास अभी मौजूद है, then everything is working fine. मेरी बात समझ में आ रही? Yes. This is a homogeneous variant of px. This is the projection. This is the image location of x in camera 1. But मैंने h specify किया कि it is homogenized variant. It has not been non-homogenized yet. So far so good. So let's recover x recovered, that is equal to x recovered is equal to f rec 3D, 3 dimensions, p1 p2 x1 and x2. अब हमारा होप ये है कि जो x rec है ना, दिस इज आइडेंटिकल टू x जो हमने खुद से अज्यूम किया था. यस नो? समझ आई बात की? कोई 3D पॉइंट था, हमने खुद 3D पॉइंट लिया है, हमने खुद 3D पॉइंट लिया है, उसकी प्रोजेक्शंस ली हैं. अब प्रोजेक्शन तो कैमरा की मदद से हम 3D की कंसीडर करते हैं, तो वही पॉइंट आना चाहिए. सो लेट्स सी. लेट अस डिस्प्ले x and x rec. Let us display both of these. Let's see what's the result. ये कॉलिंग फाइल समझ आ गई? This is simply simulation. यार आपको समझ आ रही हैं चीजें या नहीं? I mean you are not responding at all. Tell me if you do not understand. Tell me if you understand. Okay, are you understanding or not? If you do not understand, please ask. होता नहीं था पहले बहुत अच्छी लग रहा फिर आपको पीछे वाली चीज पूछते हैं. That is fine. बट जैसे जैसे आप चाह रहे हैं उसके बराबर आप पूछते हैं. मेक सेंस? और जहां आपको समझ आए प्लीज पूछेंगे. यहां से समझ नहीं आ रही स्टॉप देयर. यस एक्चुअली हमें पॉइंट लेकर 3D में. यस. और इसको हम पास कर रहे हैं, दो पॉइंट पास कर रहे हैं, P1 P2 और दो होमोजेनाइज करके पास कर रहे हैं. P1 P2 are camera matrices. P1 is a camera matrix 1, P2 is a camera matrix 2. X1 is the image location of point X in camera 1. X2 is the image location of the same point in camera 2. Make sense? Given image locations and cameras, can we reconstruct 3D? Yes? अभी हम 3D reconstruct करेंगे, लेकिन हमें 3D पॉइंट ऑलरेडी पता था, तो हम चेक करते हैं हमारा 3D reconstruction कितना सही है. Let us test our 3D reconstruction phase. Make sense? Okay. Yes. आपने x रैंडम 3/1 की बनाई है, तो आपने खुद रैंडम 3 बनाई है. कोई पॉइंट ले लिया, कोई भी पॉइंट लेता उसकी कोई यहाँ पे प्रोजेक्शन होगी, यहाँ पे प्रोजेक्शन होगी. यस. अब जब मैं रिकंस्ट्रक्ट करूंगा वही पॉइंट आना चाहिए, वही पॉइंट आना चाहिए. तो रैंडम नहीं रैंडम है, लेकिन रैंडम फिक्स हो चुका है. जब आपने रैंड कॉल किया उसके बाद तो तीन वैल्यूज आ गई, सेव कर दिया, बार-बार रैंडम नहीं हो रहा. तो बात समझ आ गई? जब आपने रैंड कॉल किया, अच्छा रैंड नहीं करते, 1 1 1 कर देते हैं, तो 1 1 1 आ जाए, 5 2 3 कर देते हैं, वो पॉइंट आ जाता है. आई एम जस्ट यूजिंग रैंड फंक्शन. ओके, बट आफ्टर रैंड इट इज फिक्स्ड. ओके, ये कैलकुलेटर से होमोजेनियस पॉइंट मल्टीप्लाई करना था, x से मल्टीप्लाई होना था p1 से और p2 से. okay, that is handled in this function. इससे? No. Oh yes. Sorry. This is homogenized. That's a bug. Thank you for pointing out. This is homogenized for you.
चले आगे? यस नो? ओके, लेट्स कॉल दिस. और देयर इज सम एरर. Dimensions of array being concatenated is not the same. X कुछ है और X rec कुछ है. क्यों? X rec क्या चीज है? Let's see. Oh. X is 3 by 1. X rec is what? ओ एक्स रैक एक रो के तौर पे रिटर्न हो रहा है. एक्स जो रिकंस्ट्रक्टेड पॉइंट है वो एक रो के तौर पे रिटर्न हो रहा है. सो लेट मी रिटर्न दैट यूजिंग सो दिस एक्स, ये एक रो के तौर पे रिटर्न हो रहा है. लेट मी रिटर्न दैट एज अ कॉलम जस्ट टू बी कंसिस्टेंट. ओके, लेट्स कॉल दिस फंक्शन अगेन. अगर आप पुरानी स्क्रीन को खराब करना चाहते हैं, यानी साफ करना चाह रहे हैं और आप वेरिएबल्स को, देन यू कैन डू दिस. ओ ये शो क्यों नहीं हुआ? ओ ये सेमीकोलन नहीं था लगाना यार. ओके, ओ माय गॉड. We have reconstructed 3D, zero error. Not only that, we have written a function that will be able to reconstruct 3D. Give the camera matrices, give the corresponding points, I will give you the 3D back. Not for one point, call that function for several points. Yes, no? Yes, sir. If there are problems in this slide now, ask. This slide should be crystal clear from now onwards. अभी हमारे कैमरा सूट से बनाएंगे. अगर आप कैमरा सूट से नहीं बनाएंगे तो जो भी कैमरा आप लगाएंगे उनमें कोई ना कोई मैट्रिसेस होंगे, उनके अगेंस्ट मैसेजेस आएंगे. ये सारा मुश्किल यही है. यानी फंक्शन के अंदर आप कैमरा मैट्रिसेस फर्क देख रहे हैं, फंक्शन की इंप्लीमेंटेशन चेंज होगी. जो मैंने फंक्शन लिखा है f_rect3d, उसकी इंप्लीमेंटेशन डज नॉट डिपेंड अपॉन कि कैमरा मैट्रिक्स क्या है. इट डिफॉल्ट एज इट इज. जो भी कैमरा मैट्रिक्स आपने कैसे एस्टिमेट किए हैं, आप किसी ने बता दिए थे, आपने डीएलटी के थ्रू एस्टिमेट किए, व्हाटएवर. सबकी कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट आपने कैसे एस्टैब्लिश किया, खुद से मार्क किया, आंखों से या ऑटोमेटिकली किया कर. Given the corresponding points and the camera matrices, you can reconstruct 3D, and this is the slide, this is implementation here. Yes, no? And not only that, this should also be cleared out. That the null space of the camera matrix in V is the camera center. I've used this vector as well. You see, this horrible math is that simple. Make sense? Yes, no? Okay, now we are moving towards DLT, direct linear transform, and we just estimate the camera matrix. और हम सिमुलेशन सेटअप ये करते हैं. हम 3D में 10-15 पॉइंट्स रैंडमली जनरेट करेंगे. Yes? हम खुद से कैमरा मैट्रिक्स बनाएंगे 3 और उन पॉइंट से उस 3 को प्रोजेक्ट करेंगे. अब हमारे पास इमेज पॉइंट्स आ जाएंगे, 3D पॉइंट्स भी होंगे. अब हम ये कैमरा मैट्रिक्स छुपा लेंगे. अब हम कहेंगे ये 3D पॉइंट्स हैं, ये 2D पॉइंट्स है, बताओ कौन सा कैसा था. वो कैमरा हमारे पास है, तो डीएलटी में हमें कैमरा ने कवर करके देगा. हम देखेंगे तो कैमरा डीएलटी में कवर करके दिया और जो एक्चुअल कैमरा आगे से होगा. दैट्स द सेटअप. मेक सेंस? सो we will generate some random points in 3D. Using some camera matrix, we will project them, but to the code we will just apply the 3D points and the 2D points
and we will ask the code to give the actual camera matrix. The code will give us a camera matrix back. We will see how good the code is because we have our camera matrix. Yes, no? So that's the setup. Okay. At least 6 points we will generate, let's say 25 points or, Okay, so now I am moving towards this slide. I will implement all the DLC details right now in MATLAB, and then using this RQ decomposition that we studied morning में आज पढ़ी है, afternoon में कल पढ़ी थी. We will find out the camera intrinsics and rotations and centers and everything. Okay? So first let's implement DLT and see how this DLT performs, how well it performs. Let's see. जी चले? Okay. सबसे पहले हम एक फंक्शन लिखते हैं f_dlt, जिसको क्या चाहिए? जिसको कुछ 3D पॉइंट्स चाहिए और उसके कॉरस्पॉन्डिंग 2D पॉइंट्स चाहिए. ये पूरा DLT का कोड लिख के वो हमें कैमरा रिटर्न किया करेगा. फिर हम उस फंक्शन को कॉल करेंगे टू टेस्ट हाउ वेल इट इज परफॉर्मिंग. यस? सो लेट्स सी. सॉरी, हमने पूरा P फाइंड आउट करना है. पहले P फाइंड करेंगे, P के बाद K और R फाइंड आउट करेंगे यूजिंग RQ decomposition. Let's see, we are going to do everything that we have covered so far in this session. So, first of all, let's implement till here. Start from here, implement till here, okay? Where these WIs are 1. ये जो WI हैं, they are all 1, okay? Let's see. बाय द वे ये सारा कुछ रैंडम है, आप बार बार इसको अप्लाई करें, आपको फर्क चीजें मिलती जाएंगी. ये देखें, हर चीज रैंडम है, कोई मैंने फिक्स नहीं की. जितनी दफा मर्जी चला लें इसको, ठीक है? यस. हम लोग ये सपोज कर रहे हैं कि पहले 3D से 2D में आ रहे हैं कैमरा मैट्रिक्स की मदद से, फिर हम वापस जाते हैं. एक्चुअली में तो ऐसा नहीं होता, कम से कम कैमरा मैट्रिक्स अगर है ही नहीं. ओके, okay, this is first and final warning to the students who are talking to each other. You are distracting me a lot, and you should be appreciating that this is completely an extra session, and even if I do not give this session to you, I'm just okay. This is for your understanding. If you do not want to understand, just leave the class, do not distract others. Make sense? Yes, please, question. सर अभी हम सपोज कर रहे हैं कि हमारे पास कैमरा मैट्रिक्स है 3D से हम 2D में उसकी हेल्प से आए हैं, लेकिन कैमरा मैट्रिक्स कहीं ना कहीं से तो आया ना स्टार्ट में. Oh, really? सर लेकिन आप तो रिकवर करेंगे ना इस चीज को वापस. देखें, 3D रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए जो चीजें रिक्वायर्ड हैं वो है कैमरा मैट्रिक्स एंड कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स. अगर कैमरा मैट्रिक्स और कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स पता हो तो 3D रिकंस्ट्रक्शन का कोड करने के लिए. अब अगला सवाल ये, कोई मुझे तो कैमरा मैट्रिक्स नहीं पता, उससे अगला सवाल ये, मुझे कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स नहीं पता, इसलिए कॉरस्पॉन्डिंग कौन है? वी विल सॉल्व देम स्टेप बाय स्टेप. जो 3D रिकंस्ट्रक्शन के लिए जो चीजें रिक्वायर्ड थी, गिवन दोस थिंग्स, आई कैन गिव यू द 3D रिकंस्ट्रक्शन गिवन दोस थिंग्स. अब कैमरा को एस्टिमेट करने के लिए क्या चीजें रिक्वायर्ड है? 3D के कॉरस्पॉन्डिंग 2D पॉइंट्स, गिवन 3D एंड कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट पेयर्स. आई थिंक ये कैमरा मैट्रिक्स. अब ये 3D के 2D में कॉरस्पॉन्डिंग कैसे पॉइंट आए? 3D में मुझे कैसे किया था? एक्चुअली तो वो जाके मुझे कहीं कैसे किया, मैं इसकी सिमुलेशन कर रहा हूं, मैं रैंडम जनरेट कर रहा हूं. मेक सेंस? ओके, okay, let's write another function. Edit f. By the way, ये जिसके ये लैपटॉप में सारे कोड जा रहे हैं, बाकियों को कोड दे दीजिएगा, सही है? f_dlt. ओके, दैट्स द फंक्शन. जब, और ये आपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ी हुई है, प्रोग्रामिंग का आपको अच्छा खासा अंदाजा है. जब आप कोई फंक्शन लिख रहे हो तो सिर्फ उस फंक्शन के इनपुट और आउटपुट के बारे में गिवन द इनपुट हाउ टू मेक द आउटपुट. डू नॉट थिंक व्हाइल राइटिंग द फंक्शन में ये कॉल लिस्ट में करना है, उसका कहां से आएगा. जस्ट राइट द फंक्शन आप इसको ले लें, इसके इनपुट ये आ गए, हाउ टू राइट द फंक्शन.
Make sense? और ये जब आप बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स कर रहे हो, प्रोग्रामिंग कर रहे हो, तो ये आदत बना लो। छोटे छोटे जब आप फंक्शन लिखे हो, अज्यूम करें कि उनके आर्गुमेंट्स आ चुके हैं, सही है? उनके जो चेक्स हैं वो आप अप्लाई करें, उसके बाद कोड लिखेंगे। जब उनको कॉल करना है, पावर किसे मिलाई है कि उसने आर्गुमेंट्स किस वे में लेके भेजने हैं, वो कहां से लेके आएगा। और जब आप पूरा प्रोजेक्ट या पूरा की एक बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, छोटे छोटे फंक्शन बना दिया करें और हर फंक्शन में जूम करके इसके ये आर्गुमेंट इस फॉर्म में आएंगे कि इसका कोड है, राइट कोड कोड। मेरी तो ये प्रैक्टिस है, मैं इन कोड को पहले लिखता हूं, कॉलर पहले लिखता हूं, क्योंकि जब मैं कॉलर लिखता हूं तो 3-4 फंक्शन कॉल होती हैं, मैं करता हूं एवरीथिंग इज ओके। मेक सेंस? दिस माइट बी हेल्पफुल फॉर यू एज वेल। ओके, अब हमने सिर्फ ये सोचना है कि DLT यानी कैमरा मैट्रिक्स को रिकवर करने के लिए हमें क्या चाहिए। ये आना कहां से है? वी विल थिंक दैट एल्सवेयर। हमें चाहिए कुछ पॉइंट्स और उनके कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स। अब हम खुद से कन्वेंशन सेट करते हैं कि यार वो पॉइंट्स किस फॉर्म में होंगे और उनके कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स किस फॉर्म में होंगे। सो मैं एक मैट्रिक्स बना लेता हूं कैपिटल H, जिसका हर कॉलम जो है वो 3D पॉइंट होगा, और एक मैट्रिक्स बना लेता हूं स्मॉल x, जिसका हर कॉलम जो है वो 2D कॉरस्पॉन्डिंग 2D पॉइंट होगा, और ये नॉन होमोजेनाइज्ड फॉर्म है। Given these, give me the camera matrix. Yes, no. So function, और ये मुझे रिटर्न क्या करेगा? कैमरा मैट्रिक्स P, which is a 3x4 matrix, F underscore DLT X X. Make sense? X is a 2x25 का मैट्रिक्स, अगर मेरे पास 25 पॉइंट है। कैपिटल X इज 3x25 का मैट्रिक्स, एवरी कॉलम का पॉइंट है। कैपिटल X में थर्ड कॉलम कॉरस्पॉन्ड टू स्मॉल x में थर्ड कॉलम। दैट्स अ कन्वेंशन। ये डेटा इसको इस फॉर्म में भेजना कैसे, ये कॉलर की जिम्मेदारी वो करेगा। यस नो? मेक सेंस? ओके, ओके, नाउ लेट्स गो टू द स्लाइड जिससे घबराते हैं आप, क्योंकि कोड इसी को देख के बनना है, कोड इसी को देख के बनना है। ओके, स्लाइड में व्हाट्स लेकिन दिस जीरो ट्रांसपोज इज 4 zeros। WI जो स्केल फैक्टर है वो मैंने 1 सेट किया हुआ है, हर पॉइंट का 1, यानी कि WI ये है कि आपका जो इमेज में था XI YI, तो तीसरा कोऑर्डिनेट स्केल फैक्टर क्या था, कोई भी ले सकते हैं। स्लाइड के अंदर WI यूज किया और कन्वीनियंट है कि आप 1 यूज करें, और हमने क्लास के अंदर जो डेरिवेशन की थी उसमें 1 यूज किया। सो दिस WI इज 1 एवरीवेयर। दिस कैपिटल X, इट इज अ होमोजेनाइज्ड वेरिएबल, इट इज अ होमोजेनाइज्ड वेरिएबल ऑफ आइदर पॉइंट X। यस, क्योंकि इसके 4 नंबर्स हैं। सिमिलरली सो मैं ये 2 अवस्था में लिखता हूं आपके सामने पॉइंट नंबर 1 के लिए, फिर हम पॉइंट नंबर 2 के लिए 2 रोज बनाएंगे, फिर पॉइंट नंबर 3 के लिए, फिर जितने भी पॉइंट्स हैं सबके लिए रोज बना देंगे, तो ये मैट्रिक्स A बन जाएगा। वंस वी हैव मैट्रिक्स A, rest of the things are just called null. सही है जी? So I'm going to make the 2 rows for the first point, first column of capital X, first column of small x. Yes, no? Where this xi is the first coordinate, small xi, and yi is the second coordinate of the point. Make sense? Okay. So मैं exactly इस स्लाइड की कन्वेंशंस को फॉलो करूंगा, आप देखिएगा। सॉरी, चार्जिंग लो हो गई है, चार्जिंग लगा दें, मैं ये माइक उतार देता हूँ, चार्जिंग लगा दें, इधर आ जाएगी तीनों। हरी आप हरी आप। तार लंबी है, किसी की वो दे दी।
सलीम दल गाली Is this the right hand component? यहाँ पे कोई साफ आप देख रहे थे यार, क्या देख रहे थे आप? आप तो बहुत आगे निकल गए जी। सॉरी यार, बाद में आप कहते हैं सब कुछ नहीं आ रहा, मैं आपको खबर बता रहा हूँ आपको, बाद में आपका ये क्लेम होता है कुछ समझ नहीं आ रहा, आप बहुत तेज जा रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। Is your claim justified now? Okay, so let's see this. Let's see this slide and implement this DLT accordingly. Let's see it. हम एक और फंक्शन लिख लेते हैं, arith f underscore homogenized, जो किसी भी पॉइंट को होमोजेनाइज कर दिया करेगा. I mean that's a simple function. Function x homogenized is f underscore homogenized x, and this will simply do the following: xh is equal to, and we assume everywhere that the vectors are column vectors, so this is simply x1. Make sense? let बार बार ये करने की बजाय let's call this function homogenized dehomogenized. Okay, so now let's go to DLT. Let's build the very first row of the matrix A. Okay, let's build the row 1 of matrix A. Let's see how it looks like. मैंने इसकी डेरिवेशन बता दी थी कि ये रो कैसे बनती है, अब मैं सिर्फ इसको इंप्लीमेंट करने जा रहा हूं. 4 zeros, then homogenized variant of the first capital X, then homogenized variant multiplied by this yi. So let's see. So it is zeros 1,4, yes, then minus homogenized variant of the first column, ऐसा ही है. लेकिन ये जो पहला कॉलम है ये रिटर्न भी कॉलम के तौर पे होगा, तो मैं इसका ट्रांसपोज ले लेता हूं ताकि ये रो बन जाए. और अगर आप इधर गौर से देखेंगे ये ट्रांसपोज लिया भी हुआ है, इसीलिए. मेक सेंस? सो पहले 4 नंबर्स, फिर अगले 4 नंबर्स. अब अगले 4 नंबर्स क्या हैं? जो स्मॉल x है उसका पहला कॉलम का दूसरा कोऑर्डिनेट वो मल्टीप्लाई होगा इसके साथ. यस, सो x 2,1, this is yi multiplied by f underscore homogeneous
दिस इज अ बैड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस. मुझे ये होमोजेनाइज एक ही दफा कर लेना चाहिए था और 2 दफा यूज करना चाहिए था, जबकि मैं इसको बार बार कर रहा हूँ. दिस इज बैड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस. सो आपको ये करना चाहिए कि जो भी फंक्शन x के ऊपर कॉल होना है उसको एक ही दफा कॉल कर ले और फिर उसको यूटिलाइज बार बार करें, बजाय बार बार उस फंक्शन को कॉल करने के. ओके, सेकंड प्रोग्राम फर्स्ट कॉलम की ले रहे हैं. क्योंकि एक मिनट, पहले मैं एरर निकालूं, देन जी. मैं असल में अगर आप स्लाइड्स में जाएं तो ये जो y आई है ना, ith पॉइंट है सिर्फ पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट i is 1. पहला पॉइंट से मुराद है कि मैंने स्मॉल x का पहला कॉलम उठाना. अब उसमें x कोऑर्डिनेट क्या है, पहला नंबर, y कोऑर्डिनेट क्या है, दूसरा नंबर. इसमें उसका दूसरा नंबर सही है. और अगर यहां पे आप गौर से देखें, तो मैं पहले कॉलम पे गया हूं और उसका दूसरा कोऑर्डिनेट मैंने उठाया, एंड दिस गिव्स मी रो 1. यस, नो, मेक सेंस? नाउ यस, ओके, आई विल रिपीट. फर्स्ट ऑफ ऑल 4 zeros, is that okay? Second, this is the homogenized version of the first point, but it will give me as a column vector, so I take the transpose to make it 4 numbers in row, and negative because this negative is there, and wi is simply 1. I've taken the scale factor 1. Okay, so the third is again the homogenized version of that point in row form multiplied by the second coordinate of the image location. So the image location is first of all we are dealing with the first point, so pick the first column. फर्स्ट कॉलम का सेकंड कोऑर्डिनेट उठा लें, दैट इज yi. Yes, multiplied by again with a homogenized version of this in row form. So this is a row of 12 numbers. Yes, no? So far so good? Let's build the second row, row 2. And so let's see the row 2. Row 2 is the homogenized version of this x, then zeros, then xi times this minus that. So let's see. Again I will do the bad programming practice. I will call f home again and again. It is good to call f home once and use it again and again. ये मैं बार बार क्यों कह रहा हूँ, ये मैं कर ही लेता हूँ कि मैं बैड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस कर रहा हूँ. So let's x1 h is equal to f underscore home x1. Make sense? And then I use the following. Make sense? Yes, no? Okay, row 2. Row 2 is again x1h transpose space, see the slides, space 4 zeros, एक और अच्छी प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस आपको दिखाते हैं. 4 zeros is Z4 and Z4. Okay? Make sense? Okay. Then we have the first coordinate minus the first coordinate times the homogenized version, and that is x 1 comma 1 multiplied by x
1H और इसका माइनस. यस, these are the first two rows of A. These are the first two. Transpose. Yes, thank you. Transpose. These are the first two rows of A. Yes? By the way, ये रोज पहले पॉइंट से आएंगे दो, दूसरे पॉइंट से भी इसी तरह दो रोज आएंगी, अगले पॉइंट से भी इसी तरह दो रोज आएंगी, जितने पॉइंट्स हैं उतनी रोज आती जाएंगी. सो लेट्स डू ऑल दीज थिंग्स इन अ लूप. यस, अब मैं लूप इस पर लूप लगाने जा रहा हूं, ये जरा गौर से देखिएगा. दिस विल चेंज टू I, दिस विल चेंज टू I, दिस विल चेंज टू I. यस, इसके ऊपर लूप लग जाएगा. इसको तो लूप के वैसे ही बाहर कर लेते हैं. कहां पे? नहीं नहीं नहीं, ith पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दो ही हैं, 1 2 1 2 1. मेक सेंस? ओके, आपकी रीडेबिलिटी बढ़ाने के लिए मैं इसको भी आई कह रहा हूं. यू आर ओके विदाउट इट, लेकिन जस्ट आपकी रीडेबिलिटी बढ़ जाएगी. ये ith पॉइंट की बात हो रही है. सही है जी. मजीद रीडेबिलिटी बढ़ाने के लिए मैं एक्स आई को कह रहा हूं x 1 I और y I को कह रहा हूं x 2 I. मेक सेंस? नाउ थिंग्स शुड बी एक्सट्रीमली crystal clear. y I, this is x I. Yes, and there is a loop outside it. Size of x comma 2, how many columns are there? Comma 2 means how many columns are there in vector x, in matrix x. जितने कॉलम्स है उतने पॉइंट्स है ना. आप ऊपर एक चेक लगा सकते हैं कि स्मॉल x के नंबर ऑफ कॉलम्स उतने ही होने चाहिए जितने कैपिटल x के. आई मीन यू कैन डू द चेक्स आप लगा लें. आई एम कंसिडरिंग एवरीथिंग फेवरेबल, या चेक्स किसी और जगह हैंडल हुए हैं वगैरह वगैरह. अच्छा जी, अब मैटलैब की एक खूबसूरती बताते हैं आपको. A इज दिस. सही है जी. A जो भी था उसकी अगली रो बना दें R1, और A जो भी था उसकी इससे अगली रो बना दें R2. तो जैसे लिंक लिस्ट में अपेंड होती हैं चीजें, ये अपेंड होती जाएंगी. मेक सेंस? इस फंक्शन के बाद आपको A मिल जाएगा जो पूरा A होगा, जितने भी आपके पास पॉइंट्स हैं. यस, साइज के आगे लिखा x पर 2. ये दिस वन. किसी भी मैट्रिक्स का x एक मैट्रिक्स है 2 बाय समथिंग, या कैपिटल X भी मैट्रिक्स है 3 बाय समथिंग. किसी भी मैट्रिक्स का साइज जो होता है ना वो 2 नंबर होते हैं, रोज कॉलम्स. और मल्टी डायमेंशनल मैट्रिक्स हो तो 3 नंबर्स 4 नंबर्स डिपेंडिंग अपॉन. इसमें जो 2 लिखना होता है वो बताता है कि मुझे नंबर ऑफ कॉलम्स बताओ. अगर मैं 1 लिखूंगा तो ये किसी भी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज बताएगा. मेक सेंस? सो 2 मींस रिटर्न द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ दिस मैट्रिक्स. सो जितने कॉलम्स हैं उतने पॉइंट्स हैं ना. मेक सेंस? ओके. मतलब कि साइज का सिंटैक्स है. This size function में ये argument means that if you write 1 there, it will return number of rows. If you write 2 there, I mean, this is built in MATLAB. You have to follow it. चले आगे. अगला स्टेप क्या है जी? P is equal to null A. ये उस सूरत में है जब आइडियल केस, जब कोई नॉइज नहीं थी. जब नॉइज हो तो फिर हमें एसवीडी वाली फॉर्म करनी पड़ेगी, वो भी अभी उस पर भी जाते हैं. अभी फिलहाल हम आइडियल केस पे रहते हैं जी. ये नियरेस्ट पॉइंट निकालेंगे अगर नॉइज हो. अगर नॉइज हो तो हमने पूरी एक डेरिवेशन की थी, अगर याद हो आपको,
एसवीडी के थ्रू, उसको भी कोड करेंगे जिसमें हम देखते हैं कि नीरज पॉइंट जी 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 एग्जैक्टली। अभी आइडियल केस है, अभी सिर्फ नॉइस पे एग्जैक्ट निकलेगी क्योंकि कोई नॉइज नहीं है, हम 3D पॉइंट से मैं बिल्कुल नॉन नॉइजी केस देख रहा हूँ। उस केस में आप मैं अभी रैंक लिस्ट को शो करूंगा, रैंक 11 आएगा मस्ट। फिर हम जो पॉइंट्स हमने बनाए होंगे ना, उस पर रैंडम नॉइज ऐड करके देखेंगे क्या होता है, हमारे कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स हैं, एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस। क्लियर? ओके, आइडियल केस। सो मैं यहाँ पे इफ कंडीशंस लगा रहा हूँ, इफ, बल्कि इफ कंडीशन लगाने की जरूरत ही नहीं है। ये आइडियल केस में, ये नॉन आइडियल केस दूसरा है। आई एम स्टॉपिंग हियर क्योंकि फिलहाल इसको कॉल करते हैं और फिर हम कोड करेंगे, या कोड कर लें नॉन आइडियल केस को भी एक ही दफा कोड कर लेते हैं। एक्चुअली वो जो एसवीडी वाली फॉर्मुलेशन है ना, इट वर्क्स इन जनरल, चाहे आइडियल है चाहे नहीं। अगर आप एसवीडी वाला काम करेंगे, अगर एग्जैक्ट सोल्यूशन होगा वो एग्जैक्ट रिटर्न कर देगा, अगर एग्जैक्ट नहीं है तो वो क्लोजेस्ट रिटर्न कर देगा। यू नेवर नीड टू कॉल दिस नल। मेक सेंस? सो आई एम गोइंग टू डू दैट। सो यू हैव ए। अब आप लोग अपने नोट्स पे देखें क्योंकि वो चीजें मैंने नोट्स पे करवाई हुई हैं। A is equal to U D V ओके, यूडीवी। इसमें सिर्फ जब वी आए तो छोटा सा काम ये करें, वी इज इक्वल टू वी ट्रांसपोज। ये मैं क्यों करवा रहा हूं, ये जो लास्ट मैट्रिक्स है एसवीडी का फंक्शन जो है मैटलैब का, ये जो लास्ट मैट्रिक्स है इसका ट्रांसपोज वेरिएंट रिटर्न करता है, एंड दैट इज समवट स्टैंडर्ड इन मैथमेटिक्स के। ये लास्ट मैट्रिक्स है, ये ट्रांसपोज फॉर्म में रिटर्न करेगा। जो हमने क्लास नोट्स लिखे उसमें वी जो था वो एज इट इज था, तो कोई बात नहीं, जो ट्रांसपोज रिटर्न हुआ उसका ट्रांसपोज ले लेंगे। यू आर नाउ हैविंग वी। अब नेक्स्ट क्या करें जी, बताएं सोल्यूशन क्या था। हमने मिनिमम वैल्यू निकालनी है किस इंडेक्स पे आ रही है, यस, और उसके अगेंस्ट y में 1 सेट कर देना है, ऐसे ही है ना। ओके, सो IDX is equal to minimum dr d। ये d एक डायगोनल मैट्रिक्स है, dr फंक्शन ये करेगा इसके डायगोनल वेक्टर को निकालेगा। अब ये वेक्टर बन जाएगा, उसका मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करें। हमें मिनिमम वैल्यू से डर नहीं है, हमें इस बात से डर है मिनिमम वैल्यू किस इंडेक्स पे आएगी, यस। सो हम इंडेक्स निकाल लेते हैं। सो बेसिकली वैल्यू एंड इंडेक्स। तो वैल्यू भी आप निकाल लें, लेकिन आपको यू नीड इंडेक्स, यस। सॉरी, एक्चुअली ये नेक्स्ट जो ट्यूसडे का सेशन है उसमें हम एसवीडी ड्राइव करेंगे। फिलहाल आप सिर्फ लास्ट लेक्चर लिया था आपने एसवीडी, जिसमें हम ये फॉर्मेशन की है। ओके, सो एसवीडी एक एल्गोरिथम है जो किसी भी मैट्रिक्स को 3 मैट्रिसेस में डिकम्पोज करता है, जिसमें पहला मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल होता है, दूसरा डायगोनल होता है, तीसरा भी ऑर्थोगोनल होता है। ये डिकम्पोजिशन करनी कैसे है, वी विल सी दैट ऑन ट्यूसडे सेशन। राइट नाउ अज्यूम कि देयर एग्जिस्ट सम एल्गोरिथम दैट डज दिस, ठीक है। जैसे क्यूआर डिकम्पोजिशन में की, आरपी डिकम्पोजिशन, उसकी पूरी मैंने डेरिवेशन की है कि ये करते कैसे हैं। मैथड में उसका एक फंक्शन है, अगर मैं सिंपली फंक्शन कॉल कर दूं और आपको बता दूं कि ये फंक्शन ये करता है, विदाउट नोइंग द डेरिवेशन यू कैन यूज इट। सिमिलरली हियर आई एम यूजिंग एसवीडी। क्लास में आ रही ऑन ट्यूसडे वी विल डिराइव एसवीडी, हाउ टू डू इट। क्लियर? ओके ओके, मिनिमम इंडेक्स निकल आया जी। सो
वाई जो वाई में आपके पास नोट्स खुले में जो वाई वेक्टर है वो उतनी लेंथ का होगा जितने बी में कॉलम्स हैं. यस, सो नंबर ऑफ कॉलम्स इन बी दैट इज साइज ऑफ बी कॉमा 2 बाय 1 मैं जीरोस का डिक्लेयर कर देता हूं और वाई आईडी एक्स को जाके 1 कर देता हूं. मेक सेंस? सो मैं जीरोस का एक वेक्टर जनरेट करता हूं और उसमें एक पर्टिकुलर इंडेक्स पे जाके एंट्री 1 कर देता हूं. यस नो? यस नो? अब आप मुझे बताएं कि x क्या था हमारा, यानी p, हमारे केस में p क्या था? दैट वॉज v ट्रांसपोज स्टेरिक y. रिमेंबर दिस? रिमेंबर दिस? हमने पूरी डेरिवेशन की थी. यस नो? अब ये नहीं कराया. अब चाहे नॉइज हो चाहे ना हो, नॉइज ना भी होगा तो आपको एग्जैक्ट रिजल्ट एसपी से मिल जाएगा. अगर नॉइज है तो फिर आपको अप्रॉक्सीमेट सॉल्यूशन मिल जाएगा. तो यू नीड नॉट कॉल नाउ, दिस ऑलवेज वर्क्स. ओके, अब 12 नंबर आ गए हैं पी के अंदर. पहले 4 नंबर उठा के हम पहली रो बनाएंगे, अगले 4 नंबर उठा के अगली रो बनाएंगे, अगले 4 नंबर उठा के अगली रो बनाएंगे, एंड दैट्स आवर कैमरा मैट्रिक्स. लेट्स डू इट. सो आई एम कॉलिंग दिस एज P1 simply या P1. Our P is the following. P1 पहले 4 नंबर ट्रांसपोज, अगली रो शुरू करें, अगले 5 नंबर 8 तक जाएंगे, 5 6 7 8, और फिर अगले 4 नंबर. Make sense? This is our camera matrix P. This is whole reality that we have studied so far, with noise and non-noise and everything. Yes, no? अब हम इसको कॉल करते हैं. अब हम करेंगे, अब हम एक कॉलम लिखेंगे टेस्ट करने के लिए कि हमारा DLT सही वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा. हम करेंगे ये कि हम 3D पॉइंट्स रैंडमली जनरेट करेंगे, हम कैमरा मैट्रिक्स खुद से कंस्ट्रक्ट करेंगे और उससे प्रोजेक्ट करके 2D पॉइंट्स बनाएंगे. लेकिन फंक्शन को हम 3D और 2D पॉइंट्स रख लेंगे और इसको कहेंगे तुम हमें कैमरा मैट्रिक्स बताओ. ये जो कैमरा मैट्रिक्स बताएगा ये वही होना चाहिए जो कैमरा मैट्रिक्स हमारा था. अगर ऐसा है तो इट इज वर्किंग वेल, अदरवाइज देयर इज अ बग. मेक सेंस? सो लेट्स ट्राई द टेस्ट कोड. आर यू विद मी? समझ आ रही है? यस. आपने पहले कहा था कि एक्चुअली एसवीडी की जरूरत नहीं है, रैंक 11 ही आएगा. रैंक 11 आएगा अगर आपका नॉइज का केस ना हो. सर आपने रैंडम नंबर जनरेट करने से नॉइज ऐसे कैसे हो सकता है कि ना आए? देखें, मैं रैंडम नंबर जब जनरेट कर रहा था तो वो कोई पॉइंट से, ठीक है, जब मैंने कैमरा मैट्रिक्स लिया वो भी कोई पॉइंट से. अब ये जो नंबर है ना ये मैं रैंडमली जनरेट नहीं कर रहा, ये पी को उस पर अप्लाई करना दिए जाते हैं. अब ये देयर इज नो रैंडमनेस. समझ आई? रैंडम नॉइज में कैसे डालूंगा? मैं x के ऊपर p अप्लाई करूंगा, ये वैल्यूज आ जाएंगी, इनको रैंडमली छेड़ दूंगा. नाउ द कॉरेस्पॉन्डेंस हैव नॉइज. देखिए नॉइज के केस में क्या होता है और नॉर्मल के केस में क्या होता है. मेक सेंस? लेट्स सी. बल्कि ये p आपके पास, ये p भी आप कर लें और साथ ही आप रैंक ए भी रिटर्न करवा लें ताकि आपको पता चले कि नॉइज थी या नहीं थी. ठीक है? रैंक ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए. तो आप देखेंगे नॉइज नहीं होगी तो रैंक 11 होगा, नॉइज होगी तो रैंक 11 से ज्यादा हो सकता है. मेक सेंस? ओके, सो ये भी रिटर्न करवा लें आप जस्ट टू. आई गेस दिस इंप्लीमेंटेशन इज क्लियर. यस, नो? लेट्स ट्राई द कॉलर ऑफ इट. edit s dlt test. जी कितने पॉइंट्स लें? पहले तो नंबर ऑफ पॉइंट्स बताएं. 50, 25, 6, 7, कम से कम 6 होने चाहिए. 6 ले लें.
प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, हाथ से कुछ नहीं करना, ज्यादा ले लें, कुछ नहीं, बाद में 6 ले लीजिएगा जी। 25, 20, 10, ओके 25। ये 25 इसलिए क्योंकि मैंने स्टार्ट में 25 सोचा हुआ था, चूंकि कीबोर्ड मेरे हाथ में है, सो ओके 25। नेक्स्ट, x is equal to rand 3/n, p is equal to rand 3/4, yes, okay. x is equal to p steric x, yes, ये एक्स होमोजीनियस है, ये एक्स होमोजीनियस है, इसको नॉन होमोजीनाइज्ड वे में कन्वर्ट कर लें जी। एक्स इज इक्वल टू एफ, लेकिन वो डी होम तो हमने लिखा था एक एक वेक्टर के लिए, है ना, एक एक वेक्टर को कन्वर्ट करता है ना, उसको चेंज कर लेते हैं यार। अगर मैंने पूरे मैट्रिक्स के सारे नॉन होमोजेनाइज करने हो तो कैसे करूं, सो इसको चेंज कर लेते हैं डी होम को। ओ, इसको तो होमोजेनाइज, अच्छा डी होम करना है ना। So last row and all columns, and then delete the last row. So 1 से लेके, हाँ ठीक है। So ये जो मैंने 2 कॉलम्स लगाए हैं, इनसे ये, अब पहले क्या कर रहा था, एक एंट्री उठाता था उससे डिवाइड करता था, अब ये करेगा कि लास्ट रो उठाएगा और डिवाइड कर देगा सारा कॉरस्पॉन्डिंगली, फिर आप लास्ट रो को डिलीट कर दें, तो जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे डी होमोजेनाइज हो जाएंगे। यस, इसी तरह आप होमोजेनाइज को भी कर सकते हैं। ये एक पॉइंट है, आप इसके नीचे लगा दें वंस, कितने लगाने चाहिए, जितने कॉलम्स है ना, जितने कॉलम्स हैं, 1 कॉमा साइज ऑफ x, 2 लें जी। अब चाहे पूरा मैट्रिक्स दें, वो होमोजेनाइज हो जाएगा, नॉन होमोजेनाइज, व्हाटएवर, मेक सेंस। ओके, आई एम मूविंग ऑन। डीएलटी टेस्ट, तो ये होमोजेनाइज और नॉन होमोजेनाइज हो जाएगा। हमने नॉन होमोजेनाइज क्यों किया है, क्योंकि हमारे फंक्शन में हमने नॉन होमोजेनाइज उसको दिया था। यस, ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, कौन सी, e to x, यस, तो 3 to n है, ये 3 to 4 है, यस, नॉट पॉसिबल। सो xh is equal to f home x, now it is possible, और ये होना भी ऐसे ही चाहिए था, होना भी ऐसे ही चाहिए था, होमोजेनाइज फॉर्म होना चाहिए। सो बहुत सारी चीजें आपको समझ तो आ रही होंगी, अब मेरी ही असम्पशन है कम से कम, ठीक है। ओके, ओके, अब हमारे पास क्या है, हम उसको x देंगे और हम उसको स्मॉल x देंगे, वो हमें ये p बताए, मेक सेंस। अब हम देखेंगे कि जो उसका p है और जो हमारा p है वो सेम है या नहीं, और वो हमें रैंक भी रिटर्न करेगा। सो p रिकवर्ड इज इक्वल टू f अंडरस्कोर DLT x, कैपिटल X, सही है जी। अब P और P रैक को हम देख लेते हैं जब ये आएगा वापस, एंट्री वाइज देख लेते हैं। P भी एक, P और P रैक अभी आ जाएगा, एंट्री वाइज देख लेते हैं इसको, पहले देखते हैं ये चलता भी है कि नहीं। चल गया जी, बड़ी अजीब बात है, एरर नहीं आया, नहीं तो प्रोग्रामिंग में हमेशा पहली दफा जरूर कोई बात आते हैं। एनीवेज, ओके, दिस इज P, दिस इज P रैक। Oh my God, huge difference। ओए होए होए होए, तो कोड गलत हो गया हमारा, है जी, कोड गलत हो गया नहीं, और नहीं हो लगा तो the camera matrix is always homogeneous, इनका स्केल फिक्स करें। जो कैमरा मैट्रिक्स
यानी जो दूसरा कैमरा मैट्रिक्स हम 25 से मल्टीप्लाई कर दो, 27 से मल्टीप्लाई कर दो, इट स्टिल स्टेज द सेम कैमरा मैट्रिक्स। समझाई? आप करेंगे इसका स्केल फिक्स कर, कोई एक वैल्यू 1 कर दें या पूरे की नॉर्म 1 कर दें, देन सी व्हाट हैपेंस। कंपैरिजन तो कब होगा ना, दो होमोजेनियस पॉइंट्स हम को कंपेयर कर सकते हैं पॉइंट वाइज? नहीं, जब तक नॉन होमोजेनाइज नहीं करते। कैमरा मैट्रिक्स का होमोजेनियस मैट्रिक्स, मेक सेंस? सो मैं ये करता ही हूं कि मैं पूरे को लास्ट एंट्री से डिवाइड कर देता हूं और फिर देखता हूं क्या करना है। यस, लेट्स कंपेयर। Okay, so I do the following: P dot slash by P 3,4, let's say किसी भी एंट्री से कर सकते हैं, और फिर P recovered dot slash P recovered 3,4। अगर अब भी मसला आएगा, अगर अब भी ये सेम नहीं आते, then there is a bug in the code. Yes? Wow. So this PNP is working perfectly. Let's see the rank. By the way, ये मैं इतनी ही पेन से आपको और अपने आप को इसलिए गुजार रहा हूं कि डू नॉट थिंक कि ये जो चीजें सर पढ़ाते हैं ये कोई दुनिया में एग्जिस्ट करती हैं, इनको कर नहीं सकते। These are that simple. You just open up MATLAB or some programming language and just start coding. और जब आप कोड लिखेंगे then you will understand कि सर पढ़ा क्या रहे थे ज्यादा अच्छे तरीके से। ये भी है। अब मैं रैंक देखता हूँ, अभी नॉइज नहीं थी, रैंक आएगा 11, क्योंकि नॉइज थी नहीं, जो एक्स था एग्जैक्ट वो मैप हुआ था। अभी फिर हम नॉइज डाल के देखते हैं। सो मैंने रैंक कहां पर रिकवर किया हुआ है? ओ, मैंने रैंक रिसीव ही नहीं किया। सो मैं रैंक रिसीव करता हूं। याद रखें ये हर चीज रैंडम है, मैं यहीं पे डिस्प्ले कर देता हूं। डिस्प P dot slash P 3/4, then P dot slash P recovered (3/4). Make sense? और मैं रैंक भी डिस्प्ले कर देता हूं। डिस्प रैंक ए। Rank 11, you can see the entries. Yes? Rank is 11. Everything is random. Run this again and again. Run this again and again. Every test is a new test because all things are generated randomly. मैंने कुछ हार्ड कोड कुछ नहीं किया, these are random. Yes? अब हम करते ये हैं, अब हम डेटा में नॉइज डालते हैं। यानी जो x था वो कैमरा और उसको मैप करें कोई से x पे आता है, वो जो x है उसको हम छेड़ के आगे पीछे करते हैं, कॉरेस्पॉन्डेंस खराब हो जाएगी। समझ आ रही ना? अब देखेंगे क्या बात है। Let's see. So x is equal to x plus rand 2 by n। इसमें मैं रैंडम नंबर्स ऐड कर देता हूं। याद रखिए ये x प्रोजेक्शंस हैं, प्रोजेक्शंस को अगर मैं छेड़ूंगा तो आई एम डिस्टर्बिंग। यस, एक्चुअल प्रोजेक्शंस को अगर मैं डिस्टर्ब कर दूं कॉरेस्पॉन्डेंस खराब हो जाएगी। इसका मतलब कोई कैमरा मैट्रिक्स एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए जो उसको इस पे मैप करे। यस, क्योंकि सारे पॉइंट्स खराब हो गए ना। मेक सेंस? अगर कुछ पॉइंट्स भी खराब हो, अगर कैमरा मैट्रिक्स 24 पॉइंट्स को सही कर रहा है, ये खराब हो गया तो वो 25 को नहीं करेगा। इवेंचुअली नॉइज यानी कॉरेस्पॉन्डेंस में जब नॉइज, और ये नॉइज मैं इसलिए कह रहा हूं, जब आप एक्चुअल इमेजेस में जाएंगे तो इमेज के कोऑर्डिनेट्स हैं वो हमेशा इंटीजर्स होते हैं। कैमरा मैट्रिक्स 3D पॉइंट्स का इंटीजर में जवाब हमेशा देगा ही एक्चुअल आइडिया केस में। पॉइंट्स में जवाब नहीं, आप राउंड ऑफ करेंगे वही कहेगा। एक्चुअल प्रोजेक्शन आनी चाहिए 2.9, 7.3। आपकी में 2.9, 7.3 कोई पिक्सल नहीं है।
तो जब आप पिक्सल को एग्जैक्ट मार्क भी करते हैं तो होगा क्या, तो उसमें आ चुका होगा। सो दिस नॉइजी केस इज द एक्चुअल केस। अब नॉइज के और भी मसले हो सकते हैं कि जब आप इंग्लिश में मार्किंग कर रहे थे, मार्किंग करते वक्त गलत हुई, ऑटोमेटिक मार्किंग कर रहे थे, एक आध जो आगे पीछे हो गए। मेक सेंस? इन दैट केस हाउ विल इट वर्क? मैं इस नॉइज की इंटेंसिटी थोड़ी कम कर रहा हूं, 0.001 steric that, okay, just to reduce the intensity of the noise. But let's see what happens in the presence of noise. I mean, this is the best that you can do. आप एंट्रीज देख लें, काफी करीब करीब भी हैं, कुछ दूर दूर भी हैं, but this is the best approximate camera matrix that you can have. Now null space will not help you. In the case of noise, rank is 12, null space is far over 10. There this has to be values. Make sense? Get the idea? Now last thing, and then we will finish, is RQ decomposition. अब हम करेंगे ये कि हमें कैमरा मैट्रिक्स गिवन है, हम उसमें से A, R और D निकालेंगे। यानी अगर कैमरा मैट्रिक्स गिवन है तो कैमरा का रोटेशन मैट्रिक्स क्या था, कैमरा का सेंटर किधर है, और कैमरा के इंट्रिंसिक पैरामीटर्स क्या है, कैमरा की फोकल लेंथ क्या है। अब BFD से आपके पास कैमरा आ गया, इस कैमरा को तोड़ दें, इसके अंदर दूसरे देखें इसमें चीजें कौन कौन, सही है जी? सो RQ so far so good? Okay. I'm assuming now you understand till here. ये जो P है ये DLT से रिकवर हो गया। अब P को तोड़ना है। जरा गौर से देखें, P is this 3x3 block and then this last column. और ये जो पहला 3x3 ब्लॉक है इसमें इंट्रिंसिक पैरामीटर और रोटेशन पड़ी हुई है। मेक सेंस? हम पहला 3x3 ब्लॉक उठाएंगे, और इसमें कैमरा इंट्रिंसिक पैरामीटर्स यानी K, मैट्रिक्स K और रोटेशन मैट्रिक्स निकालेंगे। अगर कैमरा का सेंटर निकालना है तो पूरे मैट्रिक्स की नल स्पेस निकालेंगे, सेंटर निकल आएगा। सेंटर भी पता हो कैमरे का रोटेशन भी पता हो, कैमरा किस ओरिएंटेशन पे, और कैमरा के सारे इंटरनल पैरामीटर्स भी पता हो, तो और आपको क्या चाहिए कैमरे के ऊपर। मेक सेंस? एंड वी आर गोइंग टू फाइंड दैट आउट एवरीथिंग। ओके, यहां पे मैं एक कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा सा बता दूं, फिर ये लाइट्स ऑन करें जस्ट फॉर अ मिनट। मैटलैब में जो बिल्ट इन फंक्शन है वो RQ नहीं है, मैटलैब में जो बिल्ट इन फंक्शन है वो QR क्या है? अगर आपके पास मैट्रिक्स है A तो QR will give you Q and R, where Q is orthogonal and R is upper triangle। हमें अगर स्लाइड्स आप गौर से देखें, हमें RQ चाहिए, यानी अपर ट्रायंगल पहले चाहिए जो कि K हो, और ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स यहां पे चाहिए जो रोटेशन है। मेक सेंस? अब एक तो तरीका ये है कि चूंकि मैटलैब में RQ नहीं है, QR, तो वो जो हमने सारा एल्गोरिथम क्लास में एक्सप्लेन किया उसका कोड मैटलैब में कर दें। एक तरीका ये। दूसरा तरीका ये है कि हम QR फंक्शन को यूज करके RQ अचीव कर सकते हैं, और वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। मेक सेंस? So I will use the function QR. No, I will use the function QR for RQ. और देखिए मैं करता कैसे, थोड़ा ध्यान से देखिए। Again, it requires math. Then you just you will be able to reuse a lot. अगर मेरे पास हो A और इसको मैंने किसी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स R में कन्वर्ट करना हो, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और किसी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स Q में डिकम्पोज करना, दैट इज माय गोल। तो मैं करूंगा ये कि मैं A इनवर्स को QR फंक्शन में भेजूंगा, A इनवर्स को अभी पहले कंप्यूट कर लूंगा। जब मैं A इनवर्स को QR में भेजूंगा तो A इनवर्स की QR डिकम्पोजिशन आएगी, यानी A इनवर्स को देगा कोई Q1 R1, yes,
इससे सवाल ये है कि A इनवर्स कैन इज इक्वल टू Q1 R1 यूजिंग मैथड। मैथड में Q1 R1 A इनवर्स की, तो मुझे जो भी दो वेक्टर्स मिलेंगे A इनवर्स इज इक्वल टू दैट, यस। अब अगर मैं दोनों तरफ इनवर्स अप्लाई कर दूं तो A इज इक्वल टू Q1 R1 इनवर्स, और इनवर्स जो है ऑर्डर फ्लिप कर देते हैं, सो दिस विल गिव मी R1 इनवर्स Q1 इनवर्स। सही है। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स भी अपर ट्रायंगुलर होता है, इसका इनवर्स दैट्स इट। सो आई विल यूज QR टू मेक RQ। मेक सेंस? और अगर आप कहें नहीं हमने शुरू से सारा दोबारा करना है, हमने खुद करना है, तो मैंने आपको पूरा एल्गोरिथम स्टेप बाय स्टेप करा दिया होगा। और स्क्रैच से करना चाहिए आप कर, सही है। सो आई एम राइटिंग अ फंक्शन RQ, edit f underscore RQ, and this function will use built-in function QR. Okay, this RQ function, RQ, that is equal to f underscore RQ matrix A. What I will do is the following. Okay, Q1 R1 is equal to QR of A, then R is simply, sorry, this is inverse of A. Okay, inverse of A. मैं A inverse का QR कर लेता हूँ, then R is simply inverse of R1, and Q is simply inverse of Q1. Q1 का इनवर्स उसका ट्रांसपोज होगा ना। वैसे अब INV फंक्शन भी कॉल कर दें अगर करना चाह रहे हैं, लेकिन बिला वजह मक्खी को तोप से मारने का फायदा नहीं है। अगर आपको पता है कि उसका ट्रांसपोज लेने से आ जाएगा, तो आप क्यों इनवर्स के प्रोसेस को कॉल कर रहे हैं? मेक सेंस? ओके, दैट्स इट, दिस इज RQ। और बाय द वे, इसी तरह छेड़छाड़ करके आप LQ, QL जितनी मर्जी बना लो। If you have one implementation, you can flip the orders. For example, just आपको समझाने के लिए, अगर मेरा दिल कर रहा हो कि मैं A को इस फॉर्म में लिखूं, LQ, where L is the lower triangular matrix, how can you use QR function to do that? मेरी बात समझ आ रही? क्या करूं? If I want to achieve this, मेरा सवाल ये है, अगर मैं चाहता हूं कि कोई ऐसा फंक्शन हो किसी मैट्रिक्स को ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना, और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स पहले आए, अभी तक मैंने अपर में तो करके दिखाया ना आपको, अगर मैं लोअर में करना चाहूं, यस। सो द आइडिया इज द फॉलोइंग, आप करेंगे, आप A ट्रांसपोज की QR कर दें, QR A ट्रांसपोज का A ट्रांसपोज का QR करेंगे, QR के बाद आपके पास जवाब आएगा Q1 R1, which means A transpose is equal to Q1 R1. Yes? अब दोनों तरफ ट्रांसपोज है, ट्रांसपोज लेने से भी ऑर्डर फ्लिप होता है, तो AB ट्रांसपोज इक्वल B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज। अगर आप ट्रांसपोज लेंगे, you will get A transpose is equal to R1 transpose Q1 transpose upper, oh sorry, this is A, yes। अब ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का ट्रांसपोज भी ऑर्थोगोनल ही होता है, ये मेरे पास आ जाएगा Q, जो ये मुझे चाहिए, और अपर ट्रायंगुलर का अगर आप ट्रांसपोज लेंगे तो इसका ट्रांसपोज होता है। सो यू कैन अचीव सेवरल डीकंपोजिशन यूजिंग that. Make sense? और ये है ना, हम आपको Q और R को RQ कराएं, हम LQ कर सकते हैं, QL कर सकते हैं, you can do all those। इसमें ट्रांसपोज से इनवर्स यूज होगा, क्योंकि आपने अपर को अपर में लेना है, अगर ट्रांसपोज यूज करेंगे अपर लोअर हो जाएगा, you want upper to stay upper, that's why I use inverse rather than transpose। ये रिटर्न भी करता हुआ अपर करता है, अपर ही रहेगा, अगर मैं ट्रांसपोज लेूंगा लोअर हो जाएगा, मुझे लोअर चाहिए नहीं, मुझे RQ में नहीं, ये अपर ही चाहिए, इनवर्स ऑफ अपर ही अपर, that's why I use upper। Yes, no? Okay, so that's RQ।
अब मैं आपको SDLT टेस्ट, अब मैं आपको इसका पोस्टमार्टम करके दिखाता हूं जो हमारे पास मैट्रिक्स वापस आया है। उसके कैमरा पैरामीटर्स क्या थे, यानी DLT से रिकवर किया, अगर मुझे फोकल लेंथ पता करनी हो, प्रिंसिपल पॉइंट ऑफ सेट पता करना हो, वगैरह वगैरह, मुझे पता करना हो कैमरा की इस वक्त ओरिएंटेशन कहां पे है वर्ल्ड के लिहाज से, वर्ड मैंने सेट कर दिया जब मैं 3D पॉइंट्स जनरेट किए हैं, वो वर्ड जिस कोऑर्डिनेट सिस्टम में 3D पॉइंट्स जनरेट हुए थे, वो जो रैंडम, वो मेरा वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम है, उसके लिहाज से कैमरा इस वक्त कहां देख रहा है, अगर मैंने ये पता करना, कैमरा का सेंटर इस वक्त कहां पे है, अगर मैंने ये पता करना, तो सबसे पहले मैं कैमरा का सेंटर पता करता हूं। क्या करूं जी, मेक सेंस? कैमरा कहां पे है, यहां पे, इसको डीहोमोजेनाइज कर लें, ये कैमरा का सेंटर आ गया जी। कैमरा के बारे में और क्या पता करना आपने, कैमरा की ओरिएंटेशन क्या है और कैमरा के इंटरनल पैरामीटर्स क्या है, यानी आपने ये आर भी पता करना। सो लेट्स डू दिस। अब मैं करता ये हूं, पहला 3x3 ब्लॉक उठाता हूं, उसको मैं M कहता हूं, P रिकवर्ड all rows but columns from 1 to 3. This is first 3x3 block of the matrix. Yes? What I really do is the following. I say okay, K R, मैं KR लिख रहा हूं बजाय RQ लिखने के। K means the upper triangular matrix, camera matrix, and R means the rotation matrix. And I will call the function F underscore RQ. Make sense? Yes, no? And now let's see what happens. So this is K, this is K, this is R. कैमरा की ओरिएंटेशन ये है, अब चेक कर लें, R स्टेरिक R ट्रांसपोज इज इक्वल टू 1। डिटर्मिनेंट भी चेक कर लें कि ये रिफ्लेक्शन ना हो, रोटेशन है, सही है। ये कैमरा की ओरिएंटेशन आ गई, कैमरा का सेंटर भी पता लग गया आपको। अब कैमरा के इंटरनल पैरामीटर्स हैं तो उसके अंदर घुस जाएं। इसकी पहली एंट्री क्या है, स्लाइड जाके देखें, पहली एंट्री के की क्या होती है, दूसरी एंट्री क्या होती है, इसके अंदर घुस जाएं और चीजें निकाल लें। यस नो? किसने नॉइज ऐड की है? जो भी कैमरा कवर है, जो भी कैमरा कवर है उसके पैरामीटर्स, जो भी कैमरा आइडियल कैमरा है, वो नॉइज के केस में जो भी बेस्ट कैमरा गिवन कैमरा मैट्रिक्स, हाउ टू फाइंड आउट इट्स इंग्रेडिएंट्स, रिगार्डलेस ऑफ कैमरा मैट्रिक्स नॉइज के केस में कवर होता है। मुझे तो कैमरा मैट्रिक्स मिले, मैं उसका पोस्टमार्टम करके बताता हूं, और इस पोस्टमार्टम के लिए रिक्वायर आर की कंपोजिशन। यस, हैविंग सेड दैट, अब तक हम जितना शुरू से पढ़ चुके हैं, इट शुड बी क्लियर ना। यस नो? अगर ये क्लियर नहीं है, अब दोबारा से वीडियोस को देखें, इस सेशन को देखें, वीडियोस को देखें, इस सेशन को देखें। अब अगर आप ये एक्सक्यूज करते हैं कि आपको कुछ चीज समझ नहीं आई, हो सकता है फिर भी कुछ चीज समझ ना आई हो, लेकिन इसमें ज्यादातर चांस मैं कहूंगा कि आपने एफर्ट नहीं निकाला। नाउ आई विल नॉट से कि मैं कुछ इस तरह बता रहा हूं कि आपको चीज समझ नहीं आई। अब मैं इसको इस मोड में लूंगा कि आप एफर्ट नहीं करें। मेक सेंस? स्ट्रेट चीजें समझना है जरूर पूछें, बाकी से जरूर रिकवर करें, लेकिन मेक श्योर कि इससे ज्यादा ट्रीटमेंट आपकी कैमरा की ट्रीटमेंट आपको नहीं मिले जितना मैंने कहा है और जितना ही मैंने इसको जितना डिटेल लेवल में कोड करके बता दिया। मेक सेंस? हैविंग सेड दैट, अब आपने काम क्या करना है, ये रिकॉर्डिंग मत करना और ये फाइल सबको दे दीजिए। आपने खेलना है कैमरे के साथ, ये कोड आप ले लें, आपकी असाइनमेंट यही है, अच्छी तरह से खेलें और हर चीज को समझें। मसलन